It's very difficult to hold the audiences, especially during the lunch time. But I need you all presence. I'm here with not a scripted dialogue, so I will need small help. I'll call Sarfraz, Mr. Sarfraz, please come forward. And I'll need Mr. Suresh because I will answer some of the queries what he has raised. Please, you can come forward. No, please. I request you. Yeah, Mr. Sarfraz, please. And of course, as an operator, Mr. Amit will be here. So good day everyone, this is Safwan Yusuf with you. I am CEO of Al Yusuf Enterprises and a student of ILO Fair Recruitment Policy. First of all, gratitude to Mr. Amit Chaudhary and IOM for inviting myself and every one of us to be a part of this constructive brainstorming session. To start with, skill, over the years we had learned the skill like policies, the agenda were more of, they used to produce and supply without mapping, bridging skill with employability and the current demand in the market. This is why we see the ratio, the percentage of employment even after successful training is not satisfactory. This is the reason. Now even in our case as HRA, if we normally ask to any human resource agency, what is the role of skill in your line of business? He'll say with only trade test. We make a trade test, that is what we call skill in our line of business. So see, but now, being an Indian, we should be proud. Today we stand with 50% of our total population under the age of 25 years. During next 10 years, by 2030, we'll cross 1 billion mark and will be the youngest country of the world. So here is an opportunity because the destination countries, they are already suffering due to their aging population, scarcity of skill. So here, ladies and gentlemen, we will have a tremendous opportunity to scale our business. So on this regard, during lockdown, I need everyone's attention, please. So during lockdown, we found a new Baba, that was Zoom Barabar Zoom. We were able to bring some like-minded HRAs, young, old, everyone. Young, hearty, I can say, everyone. We came on Zoom Barabar Zoom, lot of session we did. We started with a question, there should be something we are missing. We started where we are standing and where we want to reach. Where we are and where we want to reach. Where we are standing, आज हम ऐसे दौर में खड़े हैं कि किसी की आंखों में आंख मिला कर हम देख ले तो उनको लगेगा उनको कोरोना हो जाएगा. यहाँ हम खड़े हुए. Now where we want to reach? Our goal is 2030. Why? Because the new education policy has been introduced. There are a lot of government policies, including NSDC, like skill, non-skilled labor. Everyone they have a vision for 2030, and even for us, we should have a vision. See, without vision, if we think, we speak on anything. But where we are going, that's what we started with. Where we are and where we want to go. So we decided by 2030, we want to scale our business. We want to take it 10, 100, 1000 times ahead. Like Suresh ji will say, चलो मैं तो निकल पड़ता हूँ. लेकिन सर कैसे? ये भी तो ये सवाल में हमने फिर अपने आप से पूछा. अब जाएंगे कैसे? चले हमने देख लिया यहाँ चैलेंजिंग सिचुएशन में खड़े हुए. पहुंचना हमें 2030 में है. बहुत बड़ा बिजनेस हमें एक्वायर करना है. 10, 100, 1000% अपने बिजनेस को ऊपर लेके आना है. अभी सुरेश जी से हमने पूछा जाएंगे कैसे? तो इसके लिए बहुत जरूरी है वी कैन नॉट गो अलोन. ये हमें मान लेना चाहिए. कोई भी हो, हम अकेले नहीं जा सकते. वी नीड टू गो एज अ टीम. टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क. दैट इज व्हाई व्हेन वी रिमूव आई एंड रिप्लेस विद वी, इलनेस विल बिकम योर वेलनेस. सो दिस इज हाउ वी नीड टू स्टार्ट. तो हमने शुरू कर लिया. चलो ठीक है, अब शुरू करना है हमें 2030 में. ये हमारा टारगेट रहेगा. अब फिर हमने सोचा पार्टनर जब बनाएंगे स्टेक होल्डर्स तो कौन कौन रहना चाहिए. हमने माना चलो एमईए ऑलरेडी हमारे एक पार्टनर है. फिर हमने देखा एनएसडीसी हो सकता है. हमने देखा पीएमकेवीवाई हो सकता है. हमने देखा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईओएम हो सकता है. फिर साथ ही साथ में हमने बोला भाई हमारे तरफ से कौन जाना चाहिए. जैसे कि हमने हमारे वी आर बेसिकली when we represent as an HRA, we are operator of our business. As Mr. Saw also said, we should be more focused on the operation of our business. So we wanted to learn, is there any body we can develop? कोई ऐसी बॉडी हम लोग बना सकते हैं क्या जो हमारे बजाय जाके इन स्टेक होल्डर के साथ ऑपरेटर का काम करे. आई रिपीट,
हम जो है कंट्रोलर का काम करें, हम ऑपरेटर है जो सारी पॉलिसी हमारे लिए उनके बीच में जाए, एक ही मकसद से रहे, हम कहाँ है 2030 में हमें क्या चाहिए, बस इसी मुद्दे पर सोचे और इसी मुद्दे पर हमको रिप्रेजेंट करें। तो हमने सोचा, अभी सुमन जेटली सर कहते हैं 2030 के बाद तो मुझे मार्स में शिफ्ट होना है। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर आज कुछ शुरू करेंगे 10 साल तो उसे बनाने में लग जाएंगे, कि आपको करना क्या है। तो फिर हमने बोला वो बात भी सही है सर, आपके मार्स के प्लान को देखते हुए हमें कुछ इमीडिएट सोचना चाहिए। तो इमीडिएटली हमने फिर जूम बराबर जूम किया और गूगल बाबा से हमने पूछा, भाई कुछ हमें ऐसा बताइए जो इमीडिएटली हमारी हेल्प कर सके। तो हमें बहुत शॉकिंगली कुछ चीजें पता लगी। हमने आइडेंटिफाई किया कि ऐसी बिजनेस लाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जो हमारे बिजनेस के आइडेंटिकल पैरेलली मार्केट में चल रही है। आई रिपीट, एक बिजनेस लाइन जो HRAs जो हम है सिमिलरली आइडेंटिकल जो काम कर रही है वो मार्केट में चल रहा है 2006-2007 से। अब मैं आऊंगा अपनी पॉइंट पर, जिस चीज पर मैं बात करना चाह रहा हूं। उससे पहले हमने बहुत जो हमारे लॉन्ग टर्म विजन है, अभी हमें देखिए वो छोटी छोटी जो कोरोना हेल्प है वो कोरोना की दवाई आते ही खत्म हो जाएगी। हमें अगर विजन रखना है 2030 तो हमें कुछ फ्यूचरिस्टिक सोचना है। तो इसके लिए जो हमारे फ्यूचर गोल्स क्या रहेंगे, जैसे सुरेश जी ने अभी बताया कि हमें एक्सपोर्ट स्टेटस चाहिए, हमें पॉलिसी चाहिए, हमें एक दर्जा चाहिए, फिर हमें वी शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। फिर अभी सुरेश भाई फिर कहेंगे पैसे से पैसा बनाए तो एक्सपोर्ट क्रेडिट भी मिलना चाहिए। सही है ना, बिजनेसमैन वो होता है जो पैसे से पैसा बनाता है, तो यहां हमें एक्सपोर्ट क्रेडिट भी मिलना चाहिए। इन सारी चीजों को हमने ढूंढा मार्केट में, भाई कोई ऐसा कुछ अवेलेबल है क्या। तो फिर हमें पता लगा SEPC के बारे में, सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये होता क्या है भाई, आप में से बहुत लोग ये पहली बार सुनेंगे क्या। सर्विस जो इंडस्ट्री है जिसे मान्यता दी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, यहां पर एक बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जिसे कहा जाता है सर्विस एक्सपोर्ट। आम तरीके से जैसे लोग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही सर्विस को एक्सपोर्ट किया जाता है। वो पूरी मान्यता आपको दी जाती है, यू आर एन एक्सपोर्टर। अभी आप देखिए इसमें इसका रिक्वायरमेंट क्या होता है। इसका रिक्वायरमेंट यह होता है कि भाई आपके पास सिर्फ IEC कोड होना चाहिए, जो हम यहां बैठे बैठे 5 मिनट की एक्सरसाइज में बना सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। सेकेंड रिक्वायरमेंट, आपको या तो सर्विस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको वो जो उन्होंने काउंसिल बनाई हुई है उनकी मेंबरशिप लेना है। जैसे कि हम खाली मैं सर्विस पर फोकस करता हूं, समझ लीजिए हमें सर्विस एक्सपोर्ट करना है, तो मैंने सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप ले लिया। अभी आगे मुझे इनका फायदा क्या है, इनका फायदा यह है कि ये जो सारे काउंसिल है इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है। ये जो प्लेटफॉर्म की इतने दिनों से मांग कर रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इनका फायदा हमें ऐसे हो सकता है कि जितने भी ये प्रमोशन है, ये जो गवर्नमेंट लेवल पर पॉलिसीज बनती है, ये हमें अभी ये मान लीजिए जो प्रमोशन काउंसिल का काम क्या होता है, वो आइडेंटिफाई करते कि कौन सी कंट्री में कौन से मैन पावर की रिक्वायरमेंट है और अपने मेंबर्स को बताएंगे। अरे हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, कंट्री को अगर कुछ प्रॉब्लम है वो छोड़ो, हमारे पास अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। हमें कैसे मिलेगी, व्हेन वी विल स्केल आवर बिजनेस। आज जैसे कि फरहान भाई मॉर्निंग में हमारे पास आया और उन्होंने यही बात सबसे पहले रखी, भाई इलीगल रिक्रूटमेंट बहुत हो रहा है। ठीक है, अभी मैं यहां खड़े रह के बोलता हूं वहां एक आर्मी इलीगल रिक्रूटमेंट की, वो हमारे तरफ आ रही है, मैं यहीं पर बोल रहा हूं क्या हो रहा है, गवर्नमेंट भी सुन रही है, सारे सुन रहे हैं, हो रहा है, आ गई, वो मुझको क्रॉस करके निकल गई, मैं क्या कर लूंगा। तो वी डोंट नीड टू रेज अ वॉइस, वी नीड टू काउंटर। हमें अभी लड़ना होगा। ये कैसे हो सकता है भाई, आपने एक चीज देखी होगी जब आपने बड़ी बात रेज की है, unscrupulous agencies are only exploring where the place where an RA is not present। तो हम लोगों की जो जहां पर प्रेजेंस नहीं है वहां पर ये लोग अपनी लीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। अगर हमें स्केल करना है, हमने 3 सेमिनार में देखा है कि HRA से ज्यादा सब एजेंट को इंपॉर्टेंस दिया गया है। क्यों हम इन्हें गले लगा रहे हैं, क्यों ना हमको डायरेक्टली फ्रेंचाइजी की राइट दे दे। अभी फ्रेंचाइजी की राइट मिलने से हम ये नहीं बोल रहे किसी पप्पू को हम दे देंगे। फ्रेंचाइजी की राइट हम ऐसे पार्टनर को दे सकते हैं, समझ लीजिए कोई एडटेक इंस्टीट्यूट है, कोई ऐसा किसी का रनिंग बिजनेस है जहां पर हम खाली उसको हमारी सर्विस फैसिलिटेट करने के लिए फ्रेंचाइजी दे। अगर किसी सब एजेंट को हम मान्यता दे रहे हैं तो भाई वो कौन उसे पकड़ पाएगा, एक आधार कार्ड के बेसिस पर हम उसे नहीं रोक पाएंगे। सो कमिंग बैक टू माय सब्जेक्ट, वी नीड एन ऑपरेटर, वी नीड अ बॉडी हु विल रिप्रेजेंट अस, who will only work
in the betterment in the policy making. So here I had found Service Export Promotion Council. इसके ये साथ ही साथ कुछ 5-6 ऐसी चीजों को कवर करती है, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। देखिए, इनमें सर्विस, जैसे हमने कहा सर्विस एक्सपोर्ट, इसके अंदर आईटी सर्विस एक्सपोर्ट होती है, मेडिकल सर्विस एक्सपोर्ट होती है। सिमिलरली बाय नेम, नाम के साथ जो हम कह रहे हैं ना, हम हमारे आपको ह्यूमन रिसोर्सेज हमको आज मिला है, 2006 से करते आ रहे हैं। 2006 से एचआर सर्विस एक्सपोर्ट का एक बिजनेस चले आ रहा है, जो सिर्फ 5 मिनट में आपको उसको लाइसेंस मिल सकता है। ये इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है। सेकेंडली, इनका अगर इस बिजनेस में हमें $15,000 के ऊपर अगर रेमिटेंस आता है तो हमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है 5 से 7% तक। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हम इसकी मांग कर रहे हैं से, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ये बिजनेस। और इसके साथ ही साथ इनको मान्यता दी जाती है एमएसएमई की। हम आज तक के यही कोशिश करते आ रहे हैं कि कैसे हम ये सारे प्रोविजन का लाभ उठाएं, कैसे हमें एक्सपोर्ट क्रेडिट मिले, कैसे हमें एमएसएमई मान्यता दे। और वेरी इंपॉर्टेंटली, लास्ट वेरी इंपॉर्टेंटली, अटेंशन एवरीवन, हम यहां एक मांग कर रहे हैं कि इंश्योरेंस स्कीम जो है लेके आए। सही है सुरेश जी? सही है, सब मानते हैं? चाहिए हमें इंश्योरेंस स्कीम। अभी ये जो सर्विस एक्सपोर्ट बिजनेस है, सारे ही एक्सपोर्ट में एक एक्सपोर्ट क्रेडिट काउंसिल बनाई गई है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी काउंसिल, ईसीजीसी। इनका काम क्या होता है? मान लीजिए हमने किसी ओवरसीज रिक्रूटमेंट में हमने किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें हमें $100,000 आने, लेकिन कल जाके वो मुकर जाता है, तो हम ये इंश्योरेंस ले सकते हैं कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आफ्टर सर्विस अगर हमें पैसा नहीं आएगा तो ईसीजीसी उससे, समझ लीजिए मुंबईया भाषा में, वसूली करेगी, हमारा पैसा हमें मिलेगा, इसका एक हो गया इंश्योरेंस। तो ये हमारा बहुत बड़ा रिस्क कवर करता है। सेकेंड, हमने ईसीजीसी, हमने एसईपीसी से बात की, ईसीजीसी से बात की। ईसीजीसी एक चीज को खाली लेने के लिए तैयार नहीं है, वो है एट्रिशन। एट्रिशन माने हम जानते होंगे कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर भेजते के बीच में से अगर उससे निकाल दिया गया तो वो एसईपीसी कवर नहीं, ये ईसीजीसी कवर नहीं करेगी। यहां अगर हम एज ए एमईए ये बात हम एक अच्छे तरीके से पेश कर पाए कि ऑलरेडी एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जो हमारे बिजनेस को स्केल कर सकता है, जिसे ये बताने की जरूरत नहीं है भाई 10 साल नहीं लग जाए, जैसे सुमन जेटली सर ने कहा। हम अभी के अभी उसे बता, हम सिर्फ उससे डिस्कस कर सकते हैं कि ये भाई ये हमारा फ्रेम है, हमें ये चीज में आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि उनको पता है काम करना कैसे है, ये हमें उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ अगर हम उनसे मिल जाए, हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म में लेके आए और गवर्नमेंट को सिर्फ इतना बताया जाए कि ईसीजीसी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में, आप उसमें जो एट्रिशन लाना है, अगर आप उसमें वो एक लॉ पास कर देते हैं तो ईसीजीसी ही हमें, जो हम इंश्योरेंस की मांग कर रहे हैं IRDAI वगैरह की, वो ईसीजीसी के थ्रू वेरी इजीली हमें मिल सकता है। तो यही बात मुझे आप लोगों के बीच रखनी थी। थैंक यू सो मच।